Hello friends, let us begin today's class. In the previous class, we did few types of relation like reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. Now today we are going to discuss what is equivalence relation. A relation R in set A is said to be equivalence if it is रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव आल्सो एंड ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नोट, अगर आपको ये प्रूव करना हो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो यू हैव टू शो इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Sometime we have to prove show relation is not equivalence. To show R is not equivalence relation in A, we have to show either it is not reflexive or not symmetric or not transitive or not transitive। तो तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी हमने शो कर दी मिसिंग है, या तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है ये शो कर दो, या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर लागू नहीं हो रही तो रिलेशन विल नॉट बी इक्विवेलेंस। अब हम इसका कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R in set Z of integers defined as R is equal to A comma B such that A plus B is even is equivalence relation। So we have to show this is equivalence relation. So first of all what we'll do, we'll write what is R, and do remember always one thing कि R कौन से सेट में रिलेशन है, कई बार इस पे बड़ा असर पड़ता है। R is AB such that A plus B is even here means even integer। So first of all we'll show R is reflexive। तो A कॉमा बी आर में कब है, जब A प्लस बी इवन है। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा A कॉमा A इज इन R मीन्स A प्लस A इज इवन। तो देखते हैं क्या A प्लस A इवन होगा। A plus A will be 2A which is even
फॉर ऑल ए इन जेड, अगर जेड में कोई इंटीजर ए है तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, और 2a हमेशा इवन होगा अगर a इंटीजर है। तो इसका मीनिंग हुआ a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z। तो इसका मतलब Z में कोई भी एलिमेंट हमने a लिया तो वो अपने आप से रिलेटेड हो गया। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये प्रॉपर्टी हमें सेट के हर एलिमेंट के लिए शो करनी है। नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। Let in symmetric we assume AB is in R. So let AB belongs to R. So this implies A plus B is even, and A plus B is same as B plus A. So I can say B plus A is even. So when A plus B is even, we write AB in R. Now we are having B plus A is even, so we'll write B comma A is in R, means B is related to A. तो यहाँ हमने देखा जब भी A B से रिलेटेड है हमारे पास आया B A से रिलेटेड है, एंड दिस विल बी फॉर ऑल पेयर्स A B इन Z। तो जब भी Z में दो एलिमेंट A और B ऐसे हैं कि A B इन R है तो हमें मिल रहा है यहाँ पे B A is also in R, therefore R is symmetric. Now we'll prove it is transitive also. Transitive में we'll take let A be in R, means A is related to B and BC belongs to R. So this will imply A plus B is even, because definition यही है कि अगर A B से related है तो A plus B even है, and B C से related है तो we'll get B plus C is even. Now we know that sum of two even number is even, so we'll get A plus B plus B plus C is even as sum of even numbers is even. So here we'll get A plus 2B plus C is even. So I can say A plus 2B plus C is even, means multiple of 2, where M itself must be some integer. Now let me subtract 2B from both sides. A plus C will be 2M minus 2B, or A plus C is 2 times M minus B. So this implies A plus C is even, because 2 into M minus B is a integer, because B is integer, M is integer, so M minus B is integer, so 2 times of it is integer. तो A plus C हमारे पास यहाँ इवन नंबर आ गया, तो हम कह सकते हैं जब भी सम इवन है तो दो एलिमेंट रिलेटेड है, तो आई कैन से AC बिलोंग्स टू R। तो यहाँ हमने देखा AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R से हमारे पास आ रहा है AC बिलोंग्स टू R, एंड दिस इज फॉर ऑल A B C in set Z.
तो जब भी Z में 3 एलिमेंट ABC ऐसे हैं कि पेयर AB R में है, पेयर BC R में है, तो हमारे पास आ रहा है पेयर AC is in R, means A is related to C. तो this implies R is transitive. R is transitive. Now as R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation. तो R हमारे पास यहाँ एक इक्विवेलेंस रिलेशन आया। तो अभी हम कंसेप्ट कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन हम आगे के वीडियोस में लेंगे। अभी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, और इक्विवेलेंस रिलेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और ये बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये बहुत मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक है क्लास 12th का। लेट R be an equivalence relation in set A। तो सेट A में कोई इक्विवेलेंस रिलेशन R है। लेट small a element A is in A, let A belongs to A, then equivalence class of A is a set of all elements of A which are related to this element A of set A। तो जो एलिमेंट सेट A से रिलेटेड होंगे उन सब का जो सेट बनेगा उसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय square bracket and A inside, that is A equivalence class of A is set of all x, ये x कहाँ होना चाहिए, सेट A में, और ये A से रिलेटेड होना चाहिए। तो सेट A के वो सारे एलिमेंट x हमने लिए जो A एलिमेंट से रिलेटेड है। तो दिस विल बिकम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो पहले हम कुछ इक्विवेलेंस क्लास निकालने के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन शो दैट द रिलेशन आर in set A is equal to 1 2 3 up to 14 defined as R is equal to A comma B such that mod A minus B is divisible by 3 is an equivalence relation
also find equivalence class of elements 1, 2 and 3। तो कई बार ये नहीं लिखा होता फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, जनरली ये लिख दिया जाता है कि फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2 एंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3। तो वो एक ही बात है। Our set relation R is 1 A comma B। Our relation R is A comma B such that mod A minus B is divisible by 3। So first of all we'll prove it is reflexive। तो ये बड़ा इजी है रिफ्लेक्सिव शो करना। as mod A minus A भी रिलेटेड शो करना है, A को B से रिलेटेड शो करना है तो mod A minus B लेंगे। तो यहाँ मैं mod A minus A लूंगा। Here will take mod A minus A because I want to show A is related to A। So as mod A minus A is equal to 0, which is divisible by 2, divisible by 3 for all A in set A। set A में कोई भी एलिमेंट ले लो, A का मॉड A के साथ 0 होगा, मॉड A माइनस A 0 होगा, तो दिस विल इम्प्लाई A comma A belongs to R। This implies A comma A belongs to R for all A belongs to set A। तो A का हर एलिमेंट A से रिलेटेड हो गया, therefore R is reflexive। तो यहाँ R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। Now we'll show R is symmetric। For this, let AB belongs to R। This will mean mod A minus B is divisible by 3, is divisible by 3, as mod of B minus A is same as mod of A minus B। Therefore I can say mod B minus A is also divisible by 3। तो जब A माइनस B का मॉड 3 से डिविजिबल है तो B माइनस A का मॉड भी 3 से डिविजिबल होगा। सो विल गेट BA belongs to R। तो AB belongs to R से आया हमारे पास BA belongs to R for all AB in set A। तो जब भी A और B सेट A के दो एलिमेंट हैं सच दैट A B से रिलेटेड है तो हमारे पास आ रहा है B A से रिलेटेड। नाउ विल शो ट्रांजिटिविटी। डिविजिबिलिटी के केस में ट्रांजिटिविटी में ही थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, ट्रांजिटिविटी, और आई कैन से ट्रांजिटिव रिलेशन। let AB
belongs to R and BC belongs to R. तो AB belongs to R से हमारे पास क्या आएगा, mod A minus B is divisible by 3 and mod B minus C is divisible by 3. तो जब किसी नंबर का मॉड 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. सो दिस इंप्लाइज A minus B and B minus C both are divisible by 3. तो जब दो नंबर 3 से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा. तो A minus B plus B minus C is divisible by 3. That is, अब यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया. सो वी कैन से that is A minus C is divisible by 3. तो अब हम कह सकते हैं कि जब A minus C divisible by 3 आ गया तो mod A minus C is also divisible by 3. So this implies AC belongs to R. तो AC R में आ गया, AB R में था, BC R में था, हमारे पास आ गया AC is in R. Therefore R is transitive. R एक transitive relation है. Now as R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation. तो यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया. अब सेट ए को ध्यान से देखिए. सेट ए था हमारे पास 1 2 3 4 5 और आर इसमें रिलेशन है कि मॉड ए माइनस बी 3 से डिविजिबल है. हमें फाइंड करने हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 एंड 3. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. जब हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं तो हमें वो एलिमेंट निकालने हैं जो उस एलिमेंट से रिलेटेड है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट, और ए बी से रिलेटेड है अगर ए और बी का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 से डिविजिबल है. तो 1 का डिफरेंस सेट ए में ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका 1 के साथ डिफरेंस 3 का मल्टीपल आएगा या 3 से डिविजिबल आएगा. तो एक तो 1 माइनस 1 0 होगा और उसका मॉड भी 0 होगा. तो 0 3 से डिविजिबल है. अब 1 के बाद 4 देखिए. 4 माइनस 1 का मॉड 3, ये भी 3 से डिविजिबल है. तो 1 से रिलेटेड 4 भी हो जाएगा. 7 माइनस 1 6, मॉड्यूलस इज आल्सो 6, डिविजिबल बाय 3. सिमिलरली 10, तो 3 के डिफरेंस में आएंगे 10 13 16 हमारे पास है नहीं. फिर नंबर 2 से रिलेटेड एलिमेंट यानी कि जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 के साथ 3 का मल्टीपल है. तो एक तो 2 का ही है. 2 माइनस 5 और 5 माइनस 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 है. 5 माइनस 2 3 है, उसका मॉड 3. फिर 8 माइनस 2 6, 9 8 के बाद आपके पास आएगा 3 के गैप में आएगा 11 14.
15 से ज्यादा है नहीं। सिमिलरली 3 से जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो होंगे जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 के साथ 3 का मल्टीपल आएगा, 3, 6, 9, 12। तो अब ये इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई और एक 15 भी आएगा, 3, 6, 9, 12 एंड 15। So these are the equivalence classes of 1, 2, 3। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मैं 4 की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालूंगा तो यही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 4 से भी यही रिलेटेड है। तो जो भी एक इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, और कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस के एलिमेंट, दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। और ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस का जो यूनियन है वो सेट ए बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और ये इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट भी हैं, किसी का भी दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। तो यहां से हम एक प्रॉपर्टी जो है वो लिख सकते हैं, इफ R is an equivalence relation in a then number 1, equivalence class of A is same as equivalence class of B if A is related to B. Number 2, equivalence class of A and equivalence class of B, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा if A is not related to B। तो दो इक्विवेलेंस क्लास में या तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे जब वो रिलेटेड है, और या इक्विवेलेंस क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं होगा अगर दो एलिमेंट जिनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है वो आपस में रिलेटेड ना हो। थर्ड, R partition set A into equivalence classes denoted by A0, A1, A2 up to AN such that number 1, AI intersection AJ। मतलब दो इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा अगर वो दोनों अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास है, मतलब I नॉट इक्वल टू J। दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन फाई होगा और सबका यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस विल बी सेट A। Here I varies from 0 to n। इसका मतलब हो गया A0 यूनियन A1 यूनियन A2 अप टू AN। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें, इनका पेयर वाइज इंटरसेक्शन एम्प्टी है। 1 की इक्विवेलेंस क्लास, इसको अगर हम A0 कह दें, इसको A1, इसको A2, तो A0 इंटरसेक्शन A1 एम्प्टी है, A1 इंटरसेक्शन A2 एम्प्टी है, और इनका यूनियन जो है A0, A1, A2 वो होल सेट A बनेगा। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे।